Okay, listen. See, yesterday we started with proportionate capital adjustment. You remember? Yes. Proportionate capital adjustment. We did that in the last lecture. Please be quiet. All of you take sum number 43. 43rd sum. Page 61. Page 61, sum number 43. अरे तीन ही है, चार किधर? See sum number 43 फटाफट. A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:3. So what is 2:3? Old ratio. Is that right? 2:3 is old ratio. Read further. The balance sheet on 31st December 2009 was as follows. So what will be the date of our balance sheet? 1/1/2010. 1/1/2010. Is that right? All of you got this? कैश है या बैंक चेक कर लो जरा एक मिनट. कैश किया हुआ बराबर है. कैश दिया हुआ है आपको. देन लेट्स स्टार्ट. सी What's your first step? Tell me, come on. Opening balance. बराबर है. Cash का balance is what? 5,000. So two balance की buy balance. Two balance PD. 5,000. Is that right? Go to capitals. I think capitals are 50,000 each. So two की buy. A and B 50,000. That's your first step. You don't have any goodwill, right, in the balance sheet. Moving ahead, what's your second step? General reserves or losses. Search. Do you have any? This balance sheet में दिख रहा है आपको? Check कर लो. मिला? I don't think so, right? Move to third step. What is third step? Capital of new partner. Search for capital. Is to bring 25,000 as his capital and 20,000 as his share of goodwill. So capital is 25. For entry you pass, so it is cash to seize capital. Cash में to capital, capital में buy cash 25,000. Cash में to capital, capital में buy cash, that's 25. Correct? After capital, what's your next step? Goodwill.
search in the problem for goodwill what information they are given and identify which case are they asking about. First case, all of you agree on that? Now any confusion? Read. 20,000 as his share of goodwill. Withdrawn का कहीं कुछ बात किया नहीं. So it is simply case 1. How many entries in case 1? You have got 2 entries. What are the 2 entries? Cash to goodwill and goodwill to goodwill. Which ratio do we need? Case 1, case 2, sacrifice. तो आई थिंक SR सब में कहीं दिया नहीं है. NR दिया है क्या? NR भी नहीं दिया, SR भी नहीं दिया. तो what do you assume? OR is equal to SR. तो that is also 3:2. तो cash to goodwill. कैश में टू गुडविल, गुडविल में बाय कैश. पैसा आया, शेयर ऑफ गुडविल नया पार्टनर दे रहा है ओल्ड पार्टनर. व्हाट इज शेयर ऑफ गुडविल? इट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स. फ्यूचर में जो प्रॉफिट कमाने वाले हैं बिजनेस, उसमें जो हिस्सा नए पार्टनर को मिलने वाला है वो नया पार्टनर आज के आज ओल्ड पार्टनर्स को दे रहा है. बराबर है. So cash में to goodwill, goodwill में buy cash. Then what is the second entry? Goodwill to old partners. Who are the old partners? A and B. So goodwill to A cap and B cap. Which ratio? Sacrifice ratio. That is 3:2, which is I think 12. 2:3. Yeah. So 8,000 and 12,000. 2:3 it is. So goodwill में two old partners and old partners में by it's 2:3, not 3:2. 2:3 है, 40-60 है. 40% for A, 60% for B. So what was your first step? Balance. Second step, reserves. Third, capital. Fourth, goodwill. What is your fifth step? Revaluation. What is revaluation? Remember, you bring down all the assets and liabilities to their market value. कुछ बढ़ेंगे, कुछ कम होंगे, बट वो करना पड़ेगा आपको. प्रैक्टिकली बिजनेस में ये नहीं होता है. प्रैक्टिकली बिजनेस में एसेट्स कॉस्ट पर ही रहते हैं और फिर डिप्रिशिएट होते हैं. बट एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के वक्त चॉइस नहीं है आपके पास, क्योंकि पुराने एसेट्स के और पुराने लायबिलिटीज के प्रॉफिट लॉस ओल्ड पार्टनर को बिलोंग, तो आपको लाना ही पड़ता. Before admission you have to, because before admission का सारा profit loss belong to the old partners. Land and building valued at rupees 30,000. What is the book value of land and building? 25 का 20 क्या बड़ा की घटा? Gain or loss? 2 की by 2 land and building. How much? 5,000. Is that right? Second effect will go in our 30,000. बढ़ा है 25 का 30 हो गया. तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग दैट इज 5,000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग बुक में था 25 का हो गया है 30,000. और इट वाज 25 plus 5, that is 30,000. Then furniture to be depreciated by 10%. What is the book value of furniture? So it is 2,000. So depreciate हुआ तो is that a gain or a loss? So 2 की buy. So 2 furniture, that is 200. मिला? Hello. And furniture on the asset side is 2,000 less depreciation 10%, 200 outer column 1,800. Clear with that? Understood? Moving ahead. Sir, बोलो. डेप्रिसिएशन अकाउंट तो लिखा है रिवर है. दोनों चलता है. This is also done. You can write depreciation, appreciation. You can write reval. Both are fine. जनरली मैं आपको एक चीज दिया है कि रिval लिखोगे सबके लिए तो चलेगा. बाकी depreciation, appreciation is also not wrong. Then provision for bad and doubtful debts to be maintained at 5% on debtors. The debtors are
58,000 माइनस उसका 5% करना है तो गेन और लॉस तो 2 RDD I think it is 2,900 58,000 का 5%. Second effect debtors are 58 less RDD 5% 2,900 नया liability create किया तो ये होता है 55,100 बराबर. Stock revalued at 55,000. What is the book value of stock? So 50. 50 का 55 हो गया तो is that a gain or a loss? That's a gain of 5,000. Second effect in the balance sheet stock 50 था plus revalued by 5. So that's 55. That's 55,000. Is that clear? Okay. That's it. That was your revaluation part. Is the problem done? I can close down the book. There is this last very important adjustment which we discussed yesterday, if you remember. PCA. What is PCA? Proportionate capital adjustment. Read that 6th point. All of you read that 6th point. The capital account of all the partners needs to be adjusted in their profit sharing ratio and excess amount to be transferred to their loan account. मिला? तो यहाँ पे किसके थ्रू एडजस्ट करना बोला है? लोन के थ्रू एडजस्ट करना बोला है. You can adjust it in 3 possible ways. You can adjust it through cash, you can adjust it through current, you can adjust it through loan. कल हमने पता है कैश और करंट के थ्रू एडजस्ट किया था. And what is this proportionate capital adjustment? If you remember, we had discussed proportionate capital adjustment का मतलब क्या होता है? आप अपने कैपिटल्स को आज के बाद कौन से रेशियो में रखने वाले हो? PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखने वाले. We are going to keep our capitals in the PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. उससे क्या फायदा होता है पता है? मैंने बताया जिसका जितना कैपिटल उसका उतना प्रॉफिट शेयर. किसी का एक्स्ट्रा फायदा नहीं, किसी का एक्स्ट्रा नुकसान नहीं. रिमेम्बर that's what we discussed in the last lecture. So अभी ऐसा नहीं है. एक्चुअली ये एडजस्टमेंट हर एक सब में होना चाहिए. पार्टनर शुड कीप देयर कैपिटल बेस्ड ऑन देयर PSR, बट अनफॉर्चुनेटली हर एक सब में नहीं होता. ये सब में है तो करते हैं इसको सॉल्व. सबसे पहले आपको कौन सा अच्छा अभी करना है कि एंड में करना है? एंड में. तो पहले प्रॉफिट लॉस ढूंढ के ट्रांसफर करते हैं. एकदम लास्ट एडजस्टमेंट आपका PCA का होगा. ओके, डोंट फॉरगेट टू ट्रांसफर योर प्रॉफिट लॉस. डोंट फॉरगेट टू ट्रांसफर योर प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल. पहले वो ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसके बाद PCA होगा. व्हाट इज दिस टोटल एंड व्हाट इज द प्रॉफिट? 6,900 इज योर प्रॉफिट. किसको जाएगा ये? ओल्ड पार्टनर की न्यू पार्टनर्स. ओल्ड पार्टनर. सो A कैपिटल एंड B कैपिटल. Which ratio? Old ratio, which is 2:3. I think that comes to 2760. एक 2760. 306. 27. नहीं 230. 2760. हाँ सॉरी 2760 and 414. 2760 and 414 बराबर. हाँ वो तो जितना भी रिवैल्यूड पार्ट है मैंने सेकंड इफेक्ट के साथ दिया है, बाकी मैचिंग. अच्छा, रिवैल में 2 कैपिटल, तो कैपिटल में बाय रिवैल 2760 एंड 4140. ओके, अब करना है प्रोपोर्शनेट कैपिटल एडजस्टमेंट. क्या मतलब है इसका? कि जितने कैपिटल है उसको PSR में लाना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लाना है.
उसके लिए आपको सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता चल होना चाहिए. विच रेशियो डू वी नीड टू नो? एनआर वी नीड. एनआर आता है आपको कैलकुलेट करना. सर फॉर्मूला कहाँ से? सर फॉर्मूला इज फॉर एसआर. यहाँ पे तो खाली ओआर देके छोड़ दिया ना, तो इट इज टाइप 1. कैसे करना है आपको याद है? ओआर दिया हुआ है 2:3. एसआर के बारे में कुछ नहीं दिया, वो भी 2:3. फिर एक्चुअल एसआर. व्हाट इज एक्चुअल एसआर? शेयर इनटू एसआर. Share into SR. What was the share? 1/4 was the share of new partner. So 1/4 into 2/5, that's 2/20, and 1/4 into 3/5, that's 3/20. Correct? Now NR is nothing but OR minus SR. Actual SR करना है. So 2/5 minus 2/20, LCM is 20. This is 8 minus 2, 6/20. 3/5 minus 3/20, LCM is 20. This is 12 minus 3, 9/20, and 5/20. So 6:9:5. The new ratio becomes 6:9:5. Remember we did that yesterday. You get the new ratio, number 1. You get the new ratio. Sir, actual SR and SR માં ફરક શું? SR એટલે આપવું જ થઈ ગયું 2:3. આપવું થોડી આપવાના છે. એટલે actual SR એટલે શેરમાં શેરમાં જેટલું આપે છે એ રિયલમાં સેક્રિફાઈસ થાય છે. આપવું જ કરી નાખીશ OR minus SR તો 0 મળશે. તો બી રેશિયો ન્યુમરેટર ही આવશે. ડિનોમિનેટર ની actual SR નો બી રેશિયો બી આવે. ન્યુમરેટર છે, ડિનોમિનેટર અલગ છે ને. જો ત્યાં તો હવે ખાલી एक्चुअल SR ગોતે જ નહીં, ખાલી કર OR minus SR શું મળશે? 2/5 minus 2/5, 3/5 minus 3/5, 0. अंगाल दे सब कुछ दे दिया बोलो, बुला लेते चलो. तो व्हाट इज एक्चुअल सैक्रिफाइस? उसको जो हिस्सा मिल रहा है ना, उसका 2 पार्ट्स है, उसका 3 पार्ट्स. दैट इज एक्चुअल. याद आया? मिला? रेशियो आते हैं कैलकुलेशंस 6:9:5. ठीक है. तो इसके बाद आज के बाद इसका मतलब है कि कैपिटल ये रेशियो में होने चाहिए 6:9:5. तो इसके लिए एक छोटा सा कैपिटल ढूंढने का नोट है जिसको बोलते हैं पीसीए का नोट. दिस इज प्रोपोर्शनेट कैपिटल एडजस्टमेंट. ये भी कल बताया था, याद होगा तो. इसमें पार्टनर के नाम लिखने हैं ABC. न्यू रेशियो लिखना है 6:9:5. 6:9:5. एंड उसके बाद आपको प्रोपोर्शनेट कैपिटल्स ढूंढने हैं तीनों पार्टनर्स. इसके लिए एक पार्टनर का कैपिटल फिक्स्ड बेस रखना है. इसका न्यू पार्टनर का, वो इज द न्यू पार्टनर C. उसका कैपिटल बेस रखो इधर फिक्स 20,000. 25,000 कैपिटल है, उसको फिक्स रखो. 25,000 C के नीचे लिख दो. अब कंपेयर करो, देखो कैसे सोचना है. 5 पार्ट्स के लिए अगर ये 25 आ रहा है 5 पार्ट्स के लिए, तो 9 पार्ट्स के लिए इसका कितना होना चाहिए? 6 पार्ट्स के लिए इसका कितना होना चाहिए? देखो कैसे करेंगे. 25 into 9/5 क्रॉस मल्टीप्लाई. सो यू गेट व्हाट? 45,000 for B. And 25 is for 5 parts, so what for 6 parts? So 25 into 6/5. 5 पार्ट्स के लिए 25 है तो 6 का कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई. 5 पार्ट्स के लिए 25 तो 9 का कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई. 25 into 6/5, that comes to how much? 30,000. Is this clear? What? આ લોકો તો બહુ પૈસા નાખો ના 50. Is this clear all of you? So 30, 45 and 25. आज के बाद इतना कैपिटल होना चाहिए. इतना कैपिटल होना चाहिए. अगर किसी का ज्यादा है अभी वापस कर दो. अगर किसी का कम है तो मंगवा लो. लेकिन ताबड़तोड़ लेना देना नहीं है, क्योंकि कैसे एडजस्टमेंट करने बोला. देखो आपको कैश है, करंट है कि लोन है? लोन के थ्रू करना है. तो कैसे करेंगे? पहले तो ये जो मिला ना प्रोपोर्शनेट कैपिटल, उसको सीधा छाप दो. किधर लिखोगे वो? टू बैलेंस CD में लिख देना. आज के बाद इसका 30 होना चाहिए, इसका 45 होना चाहिए, इसका 25 होना चाहिए. ये पहले ही लिख देना है आपको बैलेंस.
राइट दीज इन द बैलेंसेस टू बैलेंस सीडी में प्रोपोर्शनेट कैपिटल लिख देने का. अभी डिफरेंस ढूंढने का, क्रेडिट माइनस डेबिट, डेबिट माइनस क्रेडिट. करो, देखो ए का देखो क्रेडिट बढ़ा है, डेबिट बढ़ा है. क्रेडिट बढ़ा है, कितना आ रहा है 58 into 60,760 आ रहा है, बराबर है. माइनस 30 कितना होता है 30,760. ये क्या है, एक्सेस है या डेफिसिट? एक्सेस है. इधर आया तो एक्सेस, इधर आया तो डेफिसिट. डेबिट ये एक्सेस है ना, क्योंकि आप इमेजिन करो ये ना करते और ऐसे ही बैलेंस करते तो 60,760 बैलेंस आता. प्रोपोर्शनल कैपिटल ना करता और ऐसे ही बैलेंस करता नॉर्मली जैसे करता तो 60,760 बैलेंस था. लेकिन चाहिए कितना, रिक्वायर्ड कितना है 30. बाकी का एक्सेस उसको वापस करना है. बट आर वी डूइंग टू कैश, ताबड़तोड़ दे रहे हैं नहीं. क्या लिखोगे पता है आपको, 2A's लोन अकाउंट. 2A's लोन दिया नहीं है, देना बाकी है. 2A's लोन अकाउंट इतना देना बाकी, पेंडिंग रखा हुआ. क्यों मैंने लोन किया, क्वेश्चन में दिया हुआ. क्वेश्चन में दिया हुआ है किसके थ्रू एडजस्ट करना है, लोन पे. 3 तरीके से एडजस्ट कर सकते हो एक्सेस डेफिसिट, कैश, करंट, लोन. ये लोन बोला. बी का देखो विच साइड इज बिगर, इसका भी क्रेडिट ही है 66,140, 66,140 माइनस 45, 21,140. इतना एक्सेस है कि डेफिसिट? एक्सेस. दोनों का एक्सेस था, इतना रिक्वायर्ड था ही नहीं, उससे दोनों का ज्यादा ही था. तो दोनों को हमने वापस कर दिया. इसको थोड़ा नीचे लिखना, डायरेक्टली 2 लोन भी लिख सकते हो, अलग अलग लिखा तो भी चलेगा. इधर लिखना है 2B's लोन, ऊपर लिखा मैंने 2A's लोन, ये गया 2B's लोन. व्हाट इफ डेबिट बड़ा होता, क्रेडिट छोटा होता, यहाँ पे आता बाय A's लोन बाय B. वो क्या होता, सरप्लस की डेफिसिट. जब लाना बाकी, ये देना बाकी है, वो लाना बाकी. सी का तो टैली हो जाएगा, सी का तो 25,000 ही है. अच्छा मुझे एक बात बता, क्या हमने वो सरप्लस पैसा ताबड़तोड़ चुकाया कि देना बाकी है? देना बाकी है, उसको क्या बोलते हैं? तो वो कहाँ अपियर होंगे ये दोनों? लायबिलिटी. बोथ दीज लोन विल अपियर एज लायबिलिटी. A's लोन 30,760 and B's लोन will be 21,140. Is this clear? देना बाकी. How to do PCA? Very simple. First you calculate which ratio? NR. NR के बाद PCA का ये वाला पार्ट समझना है. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, गेट द कैपिटल. वो जो भी कैपिटल मिले उसको क्या करो, बैलेंस में लिख दो. फिर डिफरेंस ढूंढो, डेबिट माइनस क्रेडिट, क्रेडिट माइनस. इधर आया तो 2 लोन, इधर आया तो बाय लोन. 2 लोन है तो लायबिलिटी, बाय लोन है तो एसेट. अगर कुछ नहीं दिया होता सब में, कैश, करंट, लोन, तो किसके थ्रू? कैश.